everyone, welcome to my channel. And today's video is very close to my heart because it's regarding my NEET journey. And as you guys know that finally मुझे एक medical college मिल गया है. So I thought of sharing my NEET journey with you guys because my NEET journey has finally come to an end now. So let's start with the video. So before starting this video, I would like to introduce you guys to a very helpful app for NEET, which is MemoNEET. MemoNEET has 30,000 plus questions which are framed from each and every line of NCERT. In NEET 2022, 96 out of 100 questions in biology and 42 out of 50 questions in chemistry were directly asked from this app. And in addition to MCQs, it has interactive formulae for physical chemistry and organic name reaction. It has intelligence revision technology, which helps you to analyze the incorrect questions and have it revised multiple times than the incorrect ones. And for physics, it has video lectures on all the important topics and questions are framed from each and every second of the video. MemoNEET test series is 100% NCERT based with full-length subject-wise and unit-wise test series which you can practice for unlimited times for just Rs 1999, and you can use my code Sanjna300 to avail 300 rupees off, and link for this app is in the description, so do check it out. So I'll start my journey when I decided that I will take medical field. Like 9th standard तक I was like कि नहीं मुझे engineering ही लेनी है because my parents wanted that and even my friends were taking engineering, so I was like कि ठीक है चलो engineering ही ले लेते हैं. But 9th standard में बहुत career counseling sessions होने लगे मेरे स्कूल में, and then I got to know that engineering is a very saturated field. Like हर एक गली में you will get to see any engineering college, हर कोई engineer बन रहा है, and most of the engineers are either unemployed or they have very low packages. बहुत गिने चुने लोग होते हैं इंजीनियरिंग फील्ड में जिन्हें अच्छे पैकेजेस मिलते हैं एंड दे हैव अ गुड लाइफ स्टाइल एंड ऑल. And then I was like there are so many other good options as well. Why to choose a field which is already very oversaturated? But then मुझे मैथ्स नहीं छोड़नी थी because that was my favorite subject. Then I was like कि ठीक है चलो PCMB ले लेते हैं with maths as a backup option. But then जब मैं कोचिंग और स्कूल में एडमिशन लेने गई then everyone suggested that taking PCMB would be really hectic because look PCB भी manage करना बहुत difficult हो जाता है, right? And managing 4 subjects which is PCMB would be really hectic and very difficult. So then I chose PCB because करनी तो medical ही थी. So then my journey started in 11th class. 11th and 12th class में मैंने एक local coaching join की थी and 11th class में मेरा सारा का सारा time स्कूल कोचिंग एंड स्कूल के असाइनमेंट्स प्रैक्टिकल्स इसमें ही लग जाता था और मेरे लिए मेरे पास सेल्फ स्टडी के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं होता था. एंड मुझे नीट के बारे में भी कुछ ज़्यादा नॉलेज थी नहीं. एंड इनफैक्ट मेरे कोचिंग में भी ज़्यादा फोकस ये लोग स्कूल एग्जाम्स पे कर रहे थे, नीट पे कुछ ज़्यादा फोकस ही नहीं हो रहा था. एंड लाइक बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सेल्फ स्टडी मेरे स्कूल में और कोचिंग टेस्ट में कुछ ज़्यादा नंबर नहीं आ रहे थे मेरे. एंड इन 11th क्लास आई गॉट अ परसेंटेज ऑफ 76 विच इज़ वेरी बिलो एवरेज. Not just me, everyone considers 76% or below average in this era. But even at that percentage, I got a rank of 5th in my class of 50 students. And then I was like, कि यार 76% is a below average. And उस पर भी मेरी 5th rank आ रही है. That means 11th class में जो मैनेज करने की डिफ़िकल्टी है वो सबको ही फेस करनी पड़ रही है. Everybody facing the same situation, just like me. And my parents were also very disappointed because 9th 10th में I was doing so good. I got 10 CGPA in both 9th and 10th class and suddenly मेरी percentage इतने down चली गई. So it was a shocking moment for all of us. But then I decided कि 11th की परसेंटेज तो इतनी मैटर करती नहीं है बट 12th की परसेंटेज 12th बोर्ड्स की परसेंटेज बहुत मैटर करती है. सो आई थॉट कि चलो ठीक है 11th में जैसे तैसे जैसी परसेंटेज आई ठीक है बट अब मुझे 12th बोर्ड्स पे फोकस करना है एंड 12th में अच्छी परसेंटेज लेके आनी है. एंड देन 12th क्लास में आई एक्चुअली स्टार्टेड स्टडी एंड मेरी स्टडीज़ नीट ओरिएंटेड बिल्कुल नहीं थी. मेरा सारा का सारा फोकस सिर्फ स्कूल बोर्ड्स पे आ गया था एंड आई वॉज जस्ट फोकसिंग ऑन स्कूल एग्जाम्स. एंड देन मेरे स्कूल एग्जाम्स एंड कोचिंग एग्जाम्स में भी अच्छी परसेंटेज आने लगी थी. आई वॉज डूइंग गुड. बट देन जब बोर्ड एग्जाम्स हुआ एंड बोर्ड का जब रिजल्ट आया दैट वॉज बिफोर नीट के पहले ही बोर्ड का रिजल्ट आ गया था एंड आई वॉज एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट 90% बिकॉज मेरे सारे एग्जाम्स ठीक ठाक ही गए थे एक्सेप्ट फिजिक्स. एंड येस जस्ट एज एक्सपेक्टेड मेरे सारे सब्जेक्ट्स में अबव 90% मार्क्स आए थे. सब में मेरे 93 95 ऐसी परसेंटेज आए थे एंड सिर्फ फिजिक्स में मेरी परसेंटेज थी 76. आई मीन इतना डिफरेंस. एंड जस्ट बिकॉज ऑफ फिजिक्स my percentage dropped to 89 and that was totally unexpected because सब में 90% से ऊपर थे यार. And I was, in fact my parents, everyone was expecting that I will be at least getting a percentage of 90.
बट स्टिल आई वॉज ओके बिकॉज एक परसेंटेज का ही डिफरेंस था एंड ठीक है चलो, बोर्ड के रिजल्ट से कुछ खास फ़र्क भी नहीं पड़ना है बिकॉज मेन तो नीट है, करनी तो मेडिकल ही थी अपन को। एंड नीट के लिए ड्रॉप करने का डिसीजन मैंने बहुत पहले ही ले लिया था, जब मैंने ये रियलाइज़ किया था दैट नीट का लेवल क्या है, नीट में किस लेवल का कंपटीशन है और मेरी प्रिपरेशन का लेवल क्या है। एंड बट नीट को अटैम्प्ट तो मुझे करना ही था। नीट का एग्ज़ाम आई थिंक मई के फर्स्ट वीक में हुआ था एंड पता था मेरी प्रिपरेशन क्या है, बट स्टिल नीट तो अटैम्प्ट करना ही था। देने गई थी नीट एंड मैंने उस दिन ही नीट के मार्क्स कैलकुलेट कर लिए थे एंड आई वॉज गेटिंग 331 मार्क्स, जिसमें 230 तो सिर्फ मेरे बायोलॉजी के ही थे। आई ऑलरेडी न्यू बिकॉज लास्ट 1 मंथ में मैंने मोस्टली बायोलॉजी ही पढ़ा था। इनफैक्ट लास्ट 2 years में मैंने मोस्टली बायोलॉजी ही पढ़ा था। सो 230 मार्क्स मेरे बायोलॉजी में थे एंड आई थिंक 70 केमिस्ट्री में थे एंड 30 मार्क्स मेरे फिजिक्स में थे। एंड नीट के जस्ट 1 week बाद ही मैंने कोचिंग ज्वाइन कर ली थी। मैंने अपनी सिटी में ही LN चंडीगढ़ ज्वाइन किया था एंड मैंने नीट की प्रिपरेशन पूरी जोश के साथ शुरू किया था एंड आई वॉज डूइंग रियली गुड। जब LN का फर्स्ट टेस्ट हुआ था उसमें मेरे 680 मार्क्स आए थे एंड वो मेरे अब तक के हाईएस्ट मार्क्स हैं। एंड आई थिंक रैंक में कुछ आई थिंक 5th रैंक आई थी मेरी आउट ऑफ आई थिंक 300 और 350 स्टूडेंट्स में मेरी 5th रैंक आई थी। आई वॉज रियली हैप्पी। उसको देख के बहुत कॉन्फिडेंस आ गया था दैट येस मार्क्स अच्छा है बिकॉज मेरा टारगेट था 600+ स्कोर करना नीट में एंड आई गॉट 680। सो ठीक है, आई वॉज लाइक ठीक है चलो अब सारे टेस्ट में मुझे ऐसे ही 600+ स्कोर करना है एंड देन फाइनली मैं नीट क्रैक कर लूँगी एंड एवरीथिंग विल बी फाइन। एंड उसके बाद मेरे सारे टेस्ट में 600+ में स्कोर कर रही थी। हाँ, अगर कभी कभी मैंने प्रिपरेशंस नहीं किया, कम रहेगी मेरी प्रिपरेशंस, तब मेरे मार्क्स लाइक 570 580 तक ड्रॉप करते थे, बट अदरवाइज आई वॉज गेटिंग अराउंड 600 मार्क्स इन ऑल माई LN टेस्ट। एंड हाँ, जब दिवाली वेकेशंस के बाद एक पूरे हाफ सिलेबस का टेस्ट हुआ था उसमें मेरा स्कोर बहुत ड्रॉप हुआ था। उसमें मेरा स्कोर था 480, जो मेरा बहुत मतलब तब तक का मेरा लोएस्ट स्कोर था। उस ड्रॉप ईयर में उतना लो मैंने कभी स्कोर नहीं किया था एंड दैट वाज बिकॉज एक तो मेरी दिवाली वेकेशंस में कुछ खास स्टडीज़ नहीं हो पाई थी एंड जो पिछला सिलेबस है मैं वो रिवाइज़ नहीं करी थी। जो आगे का सिलेबस हो रहा था मैं वो तो पढ़ती जा रही थी, मेरे मार्क्स भी आ रहे थे अब आगे वाले टेस्ट में, बट पीछे का सिलेबस मैं बिल्कुल भी रिवाइज़ नहीं करी थी। मेरे पास टाइम भी नहीं था रिविजन करने का। बट हाँ, उस टेस्ट के बाद मुझे ये रियलाइज़ हो गया दैट what I'm lacking in my preparation is revision. Revision is equally important. It's very important in fact. And then मैंने पीछे का सिलेबस रिवाइज करना भी शुरू किया। दैट वाज अराउंड नवंबर दिसंबर। फिर या इट वाज डिफिकल्ट बिकॉज आगे का सिलेबस भी कवर करना था, पीछे का भी रिवाइज करना था, बट हाँ धीरे धीरे करके आई वॉज रिवाइजिंग द स्टाफ एंड एवरीथिंग वॉज गोइंग गुड। फेब्रुवरी मंथ में सिलेबस कंप्लीट करा दिया गया था एंड उसके बाद हमारी LN की टेस्ट सीरीज़ भी स्टार्ट हो गई थी एंड टेस्ट सीरीज़ में भी आई वॉज गेटिंग अराउंड 550 to 600 मार्क्स मेरे आ रहे थे। इतने अच्छे नहीं आ रहे थे बिकॉज सिलेबस ज़्यादा था और पीछे का भी रिवाइज नहीं किया था मैंने कुछ खास, तो ठीक ठाक मेरे स्कोर्स आ रहे थे। एंड देन कोविड केम एंड लॉकडाउन हैपेंड एंड मेरी स्टडीज़ शेड्यूल एंड मोटिवेशन सबकी धज्जियाँ उड़ चुकी थी एंड LN की टेस्ट सीरीज़ भी बंद हो गई थी। बहुत आई थिंक 2-3 महीने बाद ही फिर टेस्ट सीरीज स्टार्ट हुई थी, वो भी ऑनलाइन मोड में स्टार्ट हुई थी। एंड द सिचुएशन वॉज सच कि मेरी स्टडीज़ हो ही नहीं पा रही थी मेरी स्टडीज़ एंड नीट भी 2 बार पोस्टपोन हुआ था एंड आई थिंक इट वॉज फाइनली कंडक्टेड इन द मिड ऑफ सेप्टेम्बर एंड जस्ट आई थिंक 15 days पहले नीट के मैंने सीरियस वाली प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। लाइक सीरियस वाली प्रिपरेशन तो मैं वैसे भी कर ही रही थी, बुक खोल के थोड़ी बहुत पढ़ने वाली प्रिपरेशन, बट सीरियस वाली प्रिपरेशन मैंने जब नीट का एग्जाम था उसके जस्ट 15 days पहले मैंने स्टार्ट की थी। And after a lot of silly mistakes, I finally got a score of 554 in my second NEET attempt. But counseling के लिए तो wait करना ही था and the MBBS seats in my state closed at 579. So I lost my MBBS seat just by 25 marks. बस 25 मार्क्स से मुझे कॉलेज नहीं मिला था, सो आई वॉज लाइक कि एक और बार ट्राई कर लेते हैं, क्या पता कॉलेज मिल जाए, पर किस्मत में कुछ और ही लिखा था। आई एम दैट स्टूडेंट जिसकी पढ़ाई सिर्फ ऑफलाइन कोचिंग से ही होती है। सो आई अगेन जॉइंड LN ऑफलाइन कोचिंग एंड देन अगेन लॉकडाउन हैपेंड एंड कोचिंग फिर से ऑनलाइन मोड में शिफ्ट हो गई थी एंड फिर जैसे तैसे मैंने पढ़ाई करी एंड देन आई गॉट अ स्कोर ऑफ 565 इन माई थर्ड नीट अटेम्प्ट एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई मेड OMR मिस्टेक्स, और वो भी कितनी 3 मिस्टेक्स की थी मैंने, और 3 OMR मिस्टेक्स मतलब अ लॉस ऑफ 15 मार्क्स। And you know what the cutoff was? It was 567. Yes, I again lost an MBBS seat by just 2 marks. And इस बार बहुत डिफिकल्ट था ड्रॉप लेना
Like literally till the second round, I was just praying to God for a miracle to happen, but it didn't happen and मुझे फिर से ड्रॉप लेना पड़ा बिकॉज अपने MBBS का सपना मैं सिर्फ 2 नंबर से छोड़ दूँ, इतनी वीक तो मैं नहीं थी। तो मैंने फिर से ड्रॉप लिया एंड इस बार मैंने सोच लिया था दैट ये मेरा लास्ट ड्रॉप है, ये मेरी लास्ट अपॉर्चुनिटी है एंड जो करना है इसी में करना है। एंड देन अराउंड मार्च मंथ में मैंने भी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी एंड उस टाइम पर ही PW ने नीट क्रैश कोर्स लॉन्च किया था एंड मैंने फिर वो कोर्स ज्वाइन कर लिया। वैसे तो आई वांटेड टू ज्वाइन सम ऑफलाइन कोचिंग, बट ऑफलाइन कोचिंग में उस टाइम पर सारी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी थी, तो फिर मैंने अपनी पढ़ाई PW के क्रैश कोर्स से ही कंटिन्यू करी। इस बार अराउंड मिड जुलाई के अराउंड नीट कंडक्ट हुआ था एंड इस बार ना मुझे अंदर से एक सेटिस्फैक्शन थी कि मैंने भले ही अपना बेस्ट नहीं दिया, पर मैंने अपना जितना भी दिया ना इस अटेम्प्ट में, आई थिंक उतने नंबर तो सफिशेंट आ ही जाएंगे कि मुझे एक गवर्नमेंट MBBS कॉलेज में सीट मिल जाए। एंड नीट के नेक्स्ट डे ही मैंने LN की आंसर की से अपने मार्क्स कैलकुलेट किए एंड आई वॉज गेटिंग अ स्कोर ऑफ 606 इंक्लूडिंग बोनस मार्क्स, पर NT ने कोई भी बोनस मार्क्स नहीं दिए एंड आई फाइनली गॉट अ स्कोर ऑफ 596 इन माई लास्ट अटेम्प्ट एंड अ MBBS सीट इन माई ड्रीम मेडिकल कॉलेज। And I know it was a long journey, it was a very very long journey, 5 years long journey, but whatever it was, I think it was worth it because finally मुझे एक सीट मिल गई, राइट। थोड़ा सा गिल्ट भी है बिकॉज आई थिंक अगर कोविड और लॉकडाउन नहीं हुआ होता तो शायद मुझे मेरे फर्स्ट ड्रॉप के बाद ही कॉलेज मिल जाता, फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं मिलता, दैट वाज वेरी श्योर बिकॉज स्कूल एंड कोचिंग मैनेज करना मेरी बस की बात नहीं है। बट अगर मैंने अपनी जी जान लगा दी होती है तो मेरे फर्स्ट ड्रॉप के बाद ही मुझे कॉलेज मिल जाता। बट जो भी हुआ जैसे हुआ शायद अच्छे के लिए हुआ, आई डोंट नो, बट ठीक है, एटलीस्ट आई एम सेटिस्फाइड ऑफ वॉट आई हैव गॉट। I have heard of people taking 3 drops, 6 drops, and even 9 drops for NEET and still not getting a college. So at least I'm better than those people. I'm happy for what I have got. But since I have got a college, so these 3 years are worth for me. And so yeah, that was it for my NEET journey. So that's it for today's video, and I hope you like the video. And if you do like, share, comment, and subscribe to this channel. And I'll see you guys in my next video.